Good morning, students. Welcome back to our online class. As you know, we were studying our chapter of polity, that is electoral politics. And as far we have completed, and I told you about why do we need elections, means why elections. Okay? Then I told you the basic criteria and the basic principle of a democratic elections. We have already discussed this also, and I have told you about the electoral constituency. What do you mean by constituencies? And I told you about the reservation, to whom reservation is given. I told you about the total number of parliamentary constituencies, means the Lok Sabha seats, and how many are for SC, for scheduled caste, and how many are for that scheduled tribes. That I already discussed with you in last classes, and today we will discuss about the voters list. Means as we have started this chapter, we started with the elections. The general, we are talking about the general thing, that why do we elections took place, या why elections are held, है ना? It is good to have electoral competition or not, है ना? ये सारी बातें अपन डिस्कस की. We have principles of democratic elections वगैरह, and we also discuss that reservation वगैरह सारी. But a list is prepared of voters, है ना, according to which voters used to give कि भाई एक particular area है, under that area, in that area how many are voters over there. So that type of a list is prepared of voters. We will discuss about that voters list, and we will discuss about the nomination of candidates, है ना. Till here 9th B and 9th C ने ये चैप्टर पढ़ रखा है. मैंने क्लास में भी कंप्लीट कर दिया था nomination of candidates. Only and only for 9th A I am revising अभी तक, otherwise ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होता. And then I will tell you about the election campaign and educational qualification for candidates. अच्छा बच्चों पढ़नी, तो मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें अभी तक पर पढ़ रहे हैं. These are very general terms and बहुत easy चीज़ें हैं. There is nothing to be ऐसा है कि समझाने वाली बातें हैं या कुछ ऐसी है. We are very much aware with the voters list. We are very much aware with the election campaign. We are very much aware with the reservations which is given to SC, ST, OBC वगैरह, है ना. We are also aware with the election commission of India वगैरह, ये सारी बातें हमको पता है. अब नथिंग ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कुछ नया सुन रहे हैं, है ना. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द वोटर्स लिस्ट. अच्छा, ओपन पेज नंबर 62 अपन स्टार्ट करते हैं वोटर्स लिस्ट. सो once the constituencies are decided, constituency we have already discussed about the electoral constituency, मतलब एक इंडिया को या एक पर्टिकुलर कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से कि भाई ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इतने वोटर्स हैं, इतने लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, इस तरह से. तो एज द कॉन्स्टिट्यूंसी वाज डिसाइडेड कि भाई डिफरेंट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी जब डिसाइड हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. द नेक्स्ट स्टेप इज टू दैट कि अब ये पता लगाना कि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो गई है कि मींस कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से एमपी चूज हुआ. ऑब्वियसली हमको ये डिसाइड करना है कि एमएलए चूज होगा. तो नाउ वी विल डिसाइड कि हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट. मींस वी हैव टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट. अब हमको वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो this decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the elections and given to everyone. This list is officially called the electoral roll. और जो लिस्ट प्रिपेयर होती है इस मार्क करना इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल मीन्स एक लिस्ट इज प्रिपेयर्ड कि among that list everyone is mentioned who can vote. और ऐसी लिस्ट को क्या बोला जाता है, ऑफिशियली इस लिस्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल रोल बोला जाता है, एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट. और कॉमनली इस लिस्ट को क्या बोला जाता है, वोटर्स लिस्ट वगैरह बोला जाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर इट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और ये पहला कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. बेसिक प्रिंसिपल है ना कि भाई ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का पार्ट है. एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव. और ऑब्वियसली एवरीवन व्हेन द वोटर्स लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, सारे इंसान के पास क्या होता है, इक्वल चॉइस होता है टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव.
In chapter 1, we read about the principle of universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have one equal value. No one should be denied the right to vote without good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not. Some are educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in the decisions that affect them. In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an elections. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion, or genders. अब इन्होंने बोला कि वोटर्स लिस्ट इज प्रिपेयर्ड एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड वी कैन से कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन दैट लिस्ट कि कोई इंसान समवन इज पुअर, समवन इज रिच, समवन हैव काइंड पर्सन, समवन हैव मनी, समवन इज टैलेंटेड, समवन इज एजुकेटेड, इफ समवन इज नॉट एजुकेटेड इट हार्डली मैटर्स. हर एक इंसान को क्या होता है, दे हैव द चॉइस या कह सकते हैं दे हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. उनके पास में एक वोट का होता है, मीन्स यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता है. इन आर कंट्री अपन क्या करते हैं, अबाउट 18 जो एज होता है या 18 से जो अबाउट होता है या 18 एंड 19 से अबाउट होता है आर ऑल एबल टू वोट. क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. आई बात समझ में. अब बोल रहे हैं सम क्रिमिनल्स एंड पर्संस विद अनसाउंड माइंड कैन be denied the right to vote, but only in rare situations. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. As the new person attain voting age, names are added to the voters list. Names of those moved out of a place or those who are dead are deleted. A complete revision of the list takes place every 5 years. उन्होंने बोला कि some persons are denied that they can vote या they do not have right to vote. ऐसे persons कौन होते हैं, the persons who have the unsound mind, जो उनका unsound mind होता है, या कह सकते हैं the criminals, जो बड़े बड़े criminals होते हैं, they don't have the right to vote. उनके पास में क्या नहीं होता, right to vote. तो बहुत rare situations के अंदर ऐसा होता है ना. और दूसरा बात, when voters list is prepared, some names are added, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि on that time period they attended the right to vote. कह सकते हैं 18 का उनका एज हो जाता है तो दे वो राइट उनको वोट दे सकते हैं. तो सम नेम्स आर एडेड इन द वोटर्स लिस्ट एज सम आर डिलीटेड आल्सो. डिलीटेड बाय बिकॉज कुछ लोग दे मूव टू डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट कई जगह पे चले जाते हैं, या कह सकते हैं कोई किन लोगों की डेथ वगैरह हो जाती है तो ऐसे लोगों को क्या हो जाते हैं, नेम्स डिलीट हो जाते हैं फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट. तो ये बात समझ में आ गई कि some names are added in the voters list and some names are deleted in the voters list. अब ये सब बात आई. अब बोला names of those who moved out of place or those who are dead. हो गया a complete revision of that voters list. या the voters list is prepared after every 5 years. क्योंकि every 5 years major elections होते हैं अपने कंट्री के अंदर, है ना. तो every 5 years के अंदर क्या होता है, ये voters list क्या होती है, प्रिपेयर वगैरह होती है या इसका रिविजन होता है. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card, क्या बोला, EPIC, EPIC, election photo identity card, इसको आपको ध्यान रखना है, नया has been introduced. The government has tried to give this card to every person to the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. अब इन्होंने बोला कि EPIC एक तरह का कार्ड बनाया गया है, ठीक है, बाय टू गिव द वोट. पर्सनली इसको बनाया गया है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी राइट नाउ. अभी तक अपन ने सुना भी नहीं है. अभी तक तो जो भी नॉर्मली आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं दैट इज ओके, मीन्स यू कैन हैव राशन कार्ड टू, यू कैन हैव आधार कार्ड टू, यू कैन हैव ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, मीन्स यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं. बट एक डिफरेंट टाइप ऑफ EPIC का एक कार्ड ये लॉन्च हुआ है. उससे क्या होता है कि ओनली एंड ओनली यू कैन गिव, आप ही अपने उस कार्ड से वोट दे सकते हैं. मतलब कोई दूसरा आपके नाम से वोट नहीं दे सकते, दूसरा
और डिलीट होते हैं, इसमें कंडीशन सम मूव आउट सम ऐड हो जाते हैं, सही बात है, नॉर्मल है, ठीक है। 18 एज आपको पता रखना है, इसके अबाउट आपको बहुत बार मैंने बताया भी है, दिस इज नॉट व्हाट यूनिवर्सल एलेक्टोरल फ्रेंचाइज, बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का कि प्रिपेयर अ वोटर लिस्ट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। क्या बोलते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स को बोलते हैं। अब ऑब्वियसली नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स तो देयर इज नो नॉमिनेशन, कुछ है नहीं, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वी डोंट नीड इन दैट कैंडिडेट। तो आप मुझे जरूर बताना इन नेक्स्ट गूगल मीट, मतलब गूगल मीट होगा तो आप मुझे बताना कि इंडिया के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन is not necessary for high post. If you want to become prime minister or if you want to become president, the education qualification is not needed. But if you want to become a peon, a government peon, then you must have some sort of degrees and you must be educational qualified. तो ऐसा क्यों होता है आप मुझे जरूर बताना है ना, स्पेशली कि ऐसा इज इट गुड और इज इट बैड, है ना, आप अपना ओपिनियन जो है आप मुझे बताना। चलो अब ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स बोलते हैं, वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस, दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, this is what anyone who can be a voter can also be a candidate in an election. The only difference is that in order to be a candidate the minimum age is 25 years where it is only 18 years for being a voter. So मैंने बोला कि obviously अपने देखा कि ना डेमोक्रेसी भी है रियल चॉइस या इलेक्शंस के अंदर भी है रियल चॉइस, तो obviously a person who can be a voter can also be a candidate. The difference between that is कि to be a candidate the minimum age is 25 and to be a voter the minimum age is 18. तो इस चीज़ का ये नॉर्मल सी डिफरेंस है, बाकी तो देयर इज नो डिफरेंस, मतलब हर एक इंसान क्या बन सकता है, कैंडिडेट बन सकता है, ही कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गिवन, या कोई ऐसा नहीं मेंशन है कि इफ यू हैव 5 सब्जेक्ट्स या आपके पास मास्टर्स है देन ओनली यू कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, एनीबॉडी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, है ना। तो एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। एवरी कैंडिडेट, इस चीज को आप मार्क करना है, पेज नंबर 64 देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन। क्या बोला है कि a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of सबसे पहले serious criminal cases pending against the candidate। सबसे पहले बोला कि सुप्रीम कोर्ट अब before this candidate have to fill the nomination form को भरना पड़ता है and some money उसको as a security deposit करवानी पड़ती है। फिर नाउ सुप्रीम कोर्ट ने और निकाला ऑर्डर कि भाई जो भी नॉमिनेशन फॉर्म्स वगैरह यू आर फिलिंग कोई कैंडिडेट है उसको सबसे पहले तो क्या लिखना है, उसको सबसे पहले ये लिखना है कि उसको डिक्लेरेशन करना है कि देयर इज नो सीरियस केसेस या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उसके अगेंस्ट में नहीं है। सेकंड उसने बोला डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली, और जो भी बोला कि जितनी भी लायबिलिटीज प्रॉपर्टीज एसेट्स उसके पास में है, उसके परिवार के पास में, उस सबका एक ब्यौरा आपको देना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है तो भी आपको देनी होती है, एज अ डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। ये अभी कह सकते हैं लॉ बना है। तो ये नॉर्मल नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स अपन ने देख लिया। पहली बात तो कोई नॉमिनेशन है नहीं, एवरीबडी कैन बी ए कैंडिडेट, ठीक है। बस डिफरेंस ये है 18 और 25 एज का है और नॉमिनेशन ऑफ सिर्फ नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, दिस इज जस्ट एन आप देख लेना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है कैंडिडेट के लिए। मीन्स भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने मार्क किया, बट इट इज नॉट कह सकते हैं कि ये सब समझाने वाला कुछ है, इट्स वेरी इजी। आप देख लेना कि इट इज रिटन दैट की नॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू हैव एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से गवर्न कर सकते हैं, अच्छी सी लीडर वगैरह बन सकते हैं। कि आपके पास एजुकेशन होना वहाँ पे जरूरी नहीं है, छोटी सी नॉर्मल सी बात है, आप देख लेना। अब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन, इसकी बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन की। इलेक्शन कैंपेन सिंपल सा वर्ड
इलेक्शन कैंपेन मीन्स जो कैंपेन्स होती है, जो आपने देखा होगा जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, डिफरेंट पार्टीज लॉन्च देयर कैंपेन्स कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जैसे अपने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि लोकदल जब जीता तो उसने लोन माफ़ करने का बोला, तो इस तरीके से दे लॉन्च द कैंपेन, है ना। तो कैंपेन ऑब्वियसली नॉर्मल सा वर्ड है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, डिफरेंट जो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, जो लोग खड़े होते हैं, वो डिफरेंट तरीके लोगों को प्रॉमिसेस करते हैं कि अगर हम जीतेंगे वी विल डू दिस, हम ये रिफॉर्म लाएंगे, वो करेंगे, है ना। तो इस तरह की कैंपेन्स वगैरह वो करते हैं। तो देखो, the main purpose of the election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open decisions about who is better representative, which party will make the better government, or what is a good policy. This is what happens during the election campaign. अब यही होता है, इस पूरी लाइन को आप अच्छे से मार्क कर देना, जो मेन पर्पस होता है इलेक्शंस का, मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन यही होता है कि जो वोटर्स हैं, जो पीपल है, वो प्रॉपर तरीके के रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, वो रियल चॉइस कर सकते हैं कि कौन उनके लिए सही है, हु विल डू द बेटर थिंग्स फॉर देम, कौन उनके लिए अच्छा काम करेगा, कौन उनके अच्छे पॉलिसीज प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगा, है ना, कौन उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल वगैरह करेगा, विच पार्टी विल मेक द बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी, एंड व्हाट इज गुड पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें होती है, डिसाइड हो जाती है कहाँ पे, जब कोई पार्टी या कोई इंसान अपना इलेक्शन कैंपेन करता है। In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of the candidates and the dates of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders, address elections meetings, and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of elections-related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. अब वही बात है कि जब इलेक्शंस कैंपेन या जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है, जब पार्टी के लीडर्स एंड टिकट्स जिनको मिल जाते हैं, दे स्टार्ट डूइंग द इलेक्शन कैंपेन्स। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स क्या होते हैं, वो मीटिंग्स वगैरह लेते हैं विद इन द पॉलिटिकल, डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस तरीके के कह सकते स्पीचेस वगैरह देते हैं। ये सब दीज आर द पार्ट ऑफ क्या इलेक्शंस कैंपेन क्या होता है। और ये बोलते हैं कि 2 वीक पहले स्टार्ट हो जाता है तो फाइनल लिस्ट जब होती है, बट ऐसा नहीं होता है। यूजुअली बहुत टाइम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, विद इन द पार्टी लोगों को पता होता है किसको टिकट वगैरह मिलना है, और वो पहले से ही प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं मंथ्स बिफोर, है ना। चलो, तो सबसे पहला देख लो, लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ मींस रिमूव पॉवर्टी। तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था, कांग्रेस की पार्टी ने, इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971। तो आपको इस चीज को मार्क करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है। द पार्टी प्रॉमिस टू ड्यूरिंग ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। बोला कि पार्टी क्या करेगी, सारी चीजों को रिफॉर्म करेगी, और ऐसा क्यों करेगी, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा किसने बोला, इंदिरा गांधी ने बोला 1971 मीन्स गरीबी हटाओ, एक स्लोगन दिया, मीन्स रिमूव पॉवर्टी। ये इलेक्शन कैंपेन के पार्ट होते हैं। सेकंड, सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण in the Lok Sabha elections held in 1977. The party promised to undo the excess committed during the emergency and restore civil liberties. Save democracy के भाई it was given by the जनता पार्टी, जयप्रकाश नारायण के अनुमति 1977 के अंदर दिया गया। क्यों दिया गया, एक्सेस कमिटेड, जो भी एक्सेस कमिटेड हुए थे ड्यूरिंग द कह सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पर देखना, गूगल करना, तो आप मुझे बताना कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाया था, है ना। तो ऑन दैट टाइम जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई थी उन सबको रिस्टोर करने के लिए, वापस लिबर्टी को रिस्टोर करने के लिए 1977 के अंदर, ठीक है, जनता पार्टी के जयप्रकाश नारायण ने ये बोला था कि सेव डेमोक्रेसी को क्या करना है, सेव करना है। थर्ड इज लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबलीज इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। The fourth, protect the self-respect of the Telugus was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh elections in 1983. These are the some slogans आप याद करना है, it was given by different parties in different years. ठीक है, in a democracy it is best to leave political parties and candidates free to conduct
their election campaigns to the way they want to, but it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political parties and candidates gets a fair and equal chance to comment. According to our election law, no party or election or candidate can bribe or threaten voters. Obviously, कोई भी अपने आपका किसी वोटर्स को you can't just bribe, आप रिश्वत नहीं दे सकते, किसी को डरा नहीं सकते. Appeal to them in the name of caste and religion, और you can't just appeal in the name of caste, religion, धर्म के नाम पे आप वो नहीं कर सकते. Use government resources for election campaigns, you can't use government resources for election campaigns, and spend more than 25 lakhs in the constituency for Lok Sabha elections or rupees 10 lakhs in the constituency in the assembly elections. Assembly election में तो state elections होते हैं, उसके अंदर आप 10 लाख रुपए more than 10 lakhs आप spend नहीं कर सकते हैं. इधर सेंट्रल elections जो लोक सभा इलेक्शन है उसके अंदर more than 25 lakhs आप spend नहीं कर सकते. फिर क्या बोलता है? If they do, their elections get rejected by the court even after they have been declared elected. In addition to the law, all the political parties in our country have to be a model of code of conduct. Code of conduct का आपको क्या करना है? You follow for election campaigns. According to this, no candidate or election can use any place of worship for election conduct. सबसे पहले code of conduct में किस तरीके से you will conduct the ऑल दिस कैंपेन्स. उसका क्या बोला है कि आप यूज़ नहीं करेंगे कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप वगैरह, है ना, फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा. फिर उन्होंने बोला यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस. कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह एयरक्राफ्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे फॉर इलेक्शंस. एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रॉमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज. और ऐसे जैसे आप कह सकते हैं कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जैसे इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ तो आप पब्लिक को डिफरेंट तरीके से ये नहीं कह सकते कि आप इस तरीके की पब्लिक फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे. मतलब आप जीते ही नहीं उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं धांधलेबाजी, ब्राइब वगैरह नहीं दे सकते. दिस टाइप ऑफ थिंग वाज डन. ठीक है. एंड नेक्स्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. और तब तक के लिए बाय, टेक केयर. प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर एंड प्लीज go through this chapter once, है ना. This is my request.